Hello students, today I am going to discuss the new topic that is evaluation of postfix expression. So as we know, what is the definition of a stack? A stack is an order list in which all insertion and deletion made at one end, the name of that end is called the top. And what are the application of a stack? There are several applications. So a stack are used to store local variable in memory, main memory. So this is the first application. And the second application, stacks are also used to pass parameter between functions. And stacks are used in recursion. And fourth application, stacks are also used when a program uses a subprogram. And fifth application is expression evaluation and then polish notation. So today I will discuss the expression evaluation. So what is how we can evaluate a expression? First, we know the polish notation. So polish notation. So the process of writing the operators of an expression in a particular position is called polish notation. Okay, so there are two things. The first is operand and second is operator. Operator को किस position के ऊपर रखना है, operands को कहाँ रखना है. So that notation is called a polish notation. So there are three type of polish notation. The first one is infix polish notation. Okay, so infix polish notation, if operator exists between two operand, that is called the infix polish notation. And a prefix polish notation, it means operator exists before operands. And postfix polish notation, so operator exists after operands. So now in this infix polish notation, suppose I want to add two numbers, that is a and b are operands, and operator is a plus operator. So this is the simple arithmetic expression. And the prefix polish notation, in this notation operator symbol is placed before its two operands. So to add a and b, so we can write is plus ab. Okay, so this is also equivalent to a plus b. In the similar way, the postfix polish notation, the operator symbol is placed after its two operands. So suppose if we want to add two numbers a and b, so we can write a b and then plus. So operator कहाँ पर आएगा? बाद में आएगा. पोस्टफिक्स में, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आएगा, इनफिक्स में ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के बीच में आता है. तो आज का जो टॉपिक है, हमें कन्वर्ट करना है, इवेल्युएट करना है पोस्टफिक्स पॉलिश नोटेशन को. सो द एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग कि हम एक एक्सप्रेशन को किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे. नाउ डिजाइनिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन इज नॉट सो सिंपल. So there are a couple of decisions to make first. So how do we know which part of the expression to evaluate first, and where do we store the intermediate result? कौन सा आपका expression का कौन सा portion पहले evaluate होगा? Suppose यहाँ पर आपके पास में कुछ expression है, that is a 2 plus 3 multiply by 5. तो क्या हम 2 और 3 को पहले add करेंगे या 3 और 5 को multiply करेंगे? सो डिपेंड करेगा कि किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी कितना ज्यादा है अकॉर्डिंग टू बोर्डमास. सो फॉर फिक्स द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन, वी असाइन टू ईच ऑपरेटर अ प्रायोरिटी, दैट इज कॉल्ड द बोर्डमास. सो देयर आर सेवरल ऑपरेटर्स एंड देयर प्रायोरिटी. तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होता है, दैट इज ए यूनरी ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंट ऑपरेटर. सो दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. नाउ सेकेंड लेवल के ऊपर आता है, इसके नीचे जो डाउन जाता है प्रायोरिटी, दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर. ओके, अगर आपके एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट भी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे. सो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक ही लेवल के ऊपर है, तो दिस बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर इज ए लेफ्ट एसोसिएटिव, तो लेफ्ट टू राइट हम एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, जो पहले मिलेगा उसको पहले इवेल्युएट करेंगे इफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों एक साथ आते हैं. नाउ इसके नीचे जो आता है, दैट इज ए प्लस एंड माइनस ऑपरेटर.
So this is a binary operator. इनका priority इनके नीचे होता है. So what is the difference between this plus and minus? This is a unary operator. It means the number is positive or number is negative. And this is a binary operator. अगर आप numbers को add कर रहे हैं, so that is 2 plus 3 या 5 minus 7. Okay, like this. Now after that, इस टेबल में दूसरे सिंबल्स आने वाले हैं. That is a comparative operator, less than, greater than, equal to, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to. And then logical operators, that is a AND operator. After that OR operator. Okay, so सबसे नीचे जो priority आती है वो है OR operator की. So यहाँ पर आपको कुछ डिसीजन लेना होते हैं कि हम कौन से पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे अगर आपके एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नहीं है. सो यहाँ पर बात चल रही है कि हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे. एंड वी नो द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं. नाउ द एग्जाम्पल, consider the following arithmetic expression capital P written in postfix Polish notation. That is a 4 7 3 plus multiplication 15 5 division operator minus. So this expression is equivalent to, in this expression, this is the infix expression. Okay, so in previous video we have already discussed by inspection and hand हम किसी एक infix expression को postfix में कैसे convert करते थे. Now I am going to explain here. So this is the infix expression. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं. सो 7 plus 3 को पहले कन्वर्ट करेंगे. देयर आर टू ऑपरेंड्स, दैट इज 7 and 3. तो 7 और 3 को अगर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा, दैट इज 7, 3 एंड देन प्लस ऑपरेटर. आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप पुट कर देते हैं. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स दिस इज द ऑपरेंड राइट नाउ. ओके, now there are 4 operand, 4 and this whole bracket 15 and 5. so आपके 4 ऑपरेंड है. ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन, माइनस एंड डिवीजन. तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का है. बट लेफ्ट टू राइट पहले कन्वर्ट करेंगे आप, तो दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड ऑपरेंड. तो आंसर आपका क्या होता है, दैट इज 4 7 एंड देन 3 एंड देन प्लस, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर उसके बाद में आएगा, लाइक दिस. So this is the solution, partial solution, and this is 15 divided by 5. Now there are 3 operand. The first operand is this square bracket and then minus operator 15, the division operator and then 5. So minus and division operator, तो किसकी priority सबसे ज्यादा है. So division operator का priority सबसे ज्यादा है, तो convert आप करेंगे 15 divided by 5 को. So here 4 7 3 plus multiplication and 15 divided by 5 को convert करिए. So this is 15 and then 5 and then division operator. Right now there are 2 operands. The first operand this square bracket, second operand is another square bracket, and this is a minus operator. So answer will be, this is 4 7 3 प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस ऑपरेटर आपका कहाँ पे जाएगा, सबसे लास्ट में, और उससे पहले आपके आने वाले हैं ऑपरेंड, दैट इज 15 एंड देन 5 एंड देन डिवीजन ऑपरेटर, आफ्टर दैट माइनस ऑपरेटर, लाइक दिस. तो आप देख रहे होंगे. सो दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, दैट इज 4 7 3 प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड देन 15 5. सो दिस इज 15 and 5. डिवीजन ऑपरेटर, यहाँ पे भी डिवीजन एंड देन माइनस ऑपरेटर. ओके, बताने का मतलब इतना था कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप फैमिलियर हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन से अभी तक. सो व्हाट विल बी द आंसर, 7 plus 3 that is a 10, 10 multiplied by 4 that is a 40, and 40 minus 15 divided by 3 that is a 15 divided by 5 that is a 3. So 40 minus 3 it will be equal to 37. तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि आंसर 37 आने वाला है. तो जो भी हम एल्गोरिथम में एक्सप्लेन करेंगे तो अपने आप को वेरीफाई करके देखेंगे कि आंसर 37 आ रहा है या नहीं आ रहा है. Now I am going to delete this one. Okay.
सो सबसे पहले हम अपने एल्गोरिथम को सिंक्रोनाइज करेंगे एक एनिमेशन के थ्रू। नाउ आफ्टर दैट एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट एल्गोरिथम। So the given expression is there are how many operands? 4 7 3 आप काउंट कर सकते हैं। 4 7 3 15 5, so there are 5 operands like this। तो रेड कलर में तो ऑपरेटर हैं और येलो कलर में जो मैंने शो किए दैट इज ऑपरेंड। और ऑपरेटर कितने हैं? दैट इज ए प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर। सो देयर आर 4 ऑपरेटर्स। ये आपका एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम एट द राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, आपका जो एक्सप्रेशन दिख रहा है जो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल शो किए हैं, तो आप सबसे राइट में ऐड करेंगे एक पैरेंथेसिस को लाइक दिस। ओके, सो राइट पैरेंथेसिस को अपने एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ आफ्टर दैट क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। उसके बाद में एक एम्प्टी स्टैक को आप क्रिएट करेंगे। ओके, सो लाइक दिस आपका गिवन एक्सप्रेशन क्या है? दैट इज ए 473 प्लस मल्टीप्लीकेशन 15 5 एंड डिवीजन माइनस, एंड आपने ब्रैकेट को ऐड किया था एज वेल एज एम्प्टी स्टैक को क्रिएट किया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टैक? दैट इज एस। ओके, नाउ अब अपने एक्सप्रेशन को आप स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो स्कैन जब करते हैं तो देखते हैं 1 बाय 1 करके सिंबल को स्कैन करेंगे। इफ द फर्स्ट सिंबल इज ऑपरेंड, अगर ऑपरेंड मिलता है तो आप उस ऑपरेंड को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। ओके, इफ ऑपरेंड इज इनकाउंटर देन पुश। 7 मिलता है 7 को पुश करेंगे, 3 मिलता है 3 को पुश कर देंगे। ओके, इफ ऑपरेटर इज इनकाउंटर देन डोंट पुश हियर, आप पुश नहीं करेंगे, आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वो भी 2 टाइम्स। तो स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स को आप ऑप्ट करेंगे। ओके, एंड द टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में, और नेक्स्ट टू टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो ऑपरेटर के आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर को आप दोबारा से स्टैक में पुश करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन नाउ लाइक दिस। So first 4 is encounter and 4 is operand. So ऊपर मैंने लिखा है if an operand is encounter then push it onto stack. So this is my algorithm stack. So push करेंगे, किसको push करेंगे? operand। operand कौन है? that is 4। और कहाँ पे push करेंगे? stack में, that is s। stack को हमने क्या नाम दिया? that is s। So okay, 4 is push into your stack. Now the second thing is, उसके बाद आपको कौन मिलता है? That is also operand. So once again push operation, एक दूसरा push operation कर रहे हैं आप। अब इसमें क्या push कर रहे हैं? operand 7 को। Okay, like this. Now आगे scanning करते हैं तो आपको कौन मिलता है? next symbol। next symbol is also operand. So once again push operation यहाँ पे perform होगा। तो third time आप push operation को call करेंगे और किस वैल्यू को पुश कर रहे हैं? 3। ओके, सो 3 को आपने पुश किया स्टैक के अंदर। ओके, नाउ आफ्टर दैट ऑपरेटर इज इनकाउंटर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? आगे कौन मिलता है? ऑपरेटर। सो व्हेनेवर ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन डोंट पुश इट ऑन टू योर स्टैक। बजाय पुश करें इसकी जगह पे बल्कि आप पॉप ऑपरेशन करेंगे, आप इसको पुश नहीं करेंगे। ओके, नाउ यहाँ से तो निकाला आपने, यहाँ पे राइट हैंड साइड में इसको पुट कर दिया, स्टैक में पुश नहीं किया। नाउ आफ्टर दैट नाउ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो इफ ऑपरेटर इज इनकाउंटर देन डू नॉट पुश इट ऑन टू स्टैक बट पॉप्ड टॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक एंड अप्लाई ऑपरेटर बिटवीन देम। जो आपका इनकाउंटर्ड ऑपरेटर है वो इन जो टॉप मोस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट जो पॉप्ड हो रहे हैं उनके बीच में आप अप्लाई करेंगे लाइक दिस। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा पॉप्ड होने वाला है? दैट इज ए 3। तो आप 3 को पॉप्ड करेंगे और ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में पुट करेंगे।
उसके बाद में कौन पॉप्ड होने वाला है, दैट इज 7। 7 को भी पॉप्ड करेंगे और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में देंगे, नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, टॉप मोस्ट एलिमेंट को राइट हैंड साइड में। सो आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से होगा। सो वंस अगेन पॉप ऑपरेशन, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट इज कैपिटल ए, इट मींस ए का वैल्यू जो होने वाला है दैट इज 3। सो 3 जो है वो राइट हैंड साइड में ऑपरेटर के आएगा। नाउ द नेक्स्ट वंस अगेन पॉप ऑपरेशन, दैट इज ए कैपिटल बी, इट मींस नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका कौन सा है, दैट इज 7। 7 को आप ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10 and calculate the result. So answer will be 10। और इस आंसर को आप दोबारा से स्टैक के अंदर पुश करने जा रहे हैं। once again answer is 10। now this 10 आप किस में पुश करेंगे, स्टैक के अंदर पुश करेंगे। ओके, सो एनिमेशन आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, लाइक दिस, एंड पुश दिस रिजल्ट ऑन टू योर स्टैक। आपने 2 एलिमेंट तो पॉप कर लिए और आपने रिजल्ट जो 10 आया उसको पुश किया स्टैक के अंदर, लाइक दिस। नाउ स्कैनिंग आप अपनी कंटिन्यूएशन में रखिएगा। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सिंबल इज ए ऑपरेटर। विच ऑपरेटर, दैट इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ओके, सो इफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन डोंट पुश। ओके, ऑपरेटर आने पे पुश नहीं करना है। आप 2 ऑपरेंड को पॉप करेंगे स्टैक में, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है। सो 10 इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में, नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में, एंड आंसर विल बी दैट इज ए 4 × 10 इज इक्वल टू 40। तो मैटर करता है कि राइट हैंड साइड में आप क्या रख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रख रहे हैं, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लीकेशन केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस का केस है या डिवीजन का केस है तो आंसर चेंज होगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट आंसर इज 40। Now this answer is push back onto your stack। आप अपने स्टैक में दोबारा से पुश करेंगे like this, and the continuation में आप अपनी स्कैनिंग करते रहेंगे। So the next symbol is 15 and 15 is operand, or if operand is encountered then push it onto your stack। Next thing is a operand, so push it onto your stack। The next symbol is a operator, so don't push। ओके, आपने इसको हटा दिया और टॉप 2 एलिमेंट्स आपने यहाँ से पॉप किए। सो द टॉप मोस्ट एलिमेंट दैट इज 5 जो है वो ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में, जो इनकाउंटर ऑपरेटर था, और नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में। सो 15 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर विल बी 3। और इस 3 को दोबारा से स्टैक में आप पुश करने वाले हैं, दैट इज पुश बैक एंड कंटिन्यू। आप अपनी स्कैनिंग को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपको राइट पैरेंथेसिस नहीं मिलती। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ए माइनस ऑपरेटर, डोंट पुश। ओके, एंड देन पॉप टॉप 2 एलिमेंट। सो द 3 इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट, ऑपरेटर का राइट हैंड साइड जाएगा, एंड नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एंड 40 - 3 इट इज इक्वल टू 37। 37 को आप स्टैक के अंदर पुश करेंगे। Now the next symbol scanning आप देखते हैं। So if right parenthesis is encountered, it means whatever the topmost element of your stack, that will be your answer। So right now यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया, if right parenthesis is encountered then top element of stack will be answer। So don't इसको तो आप ड्रॉप ही कर देंगे, ना पुश करेंगे ना कुछ करेंगे। सो आंसर विल बी द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ योर स्टैक, दैट इज 37। सो दिस इज द वर्किंग मेथड ऑफ योर एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले आपने जो आपको गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसमें राइट हैंड साइड में आप पैरेंथेसिस को ऐड किया और एम्प्टी स्टैक को क्रिएट किया। ओके, एंड देन आप अपने एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब तक आपको राइट पैरेंथेसिस जो आपने ऐड किया है वो इनकाउंटर नहीं होता। तो वहां पर स्टेप्स आते हैं। इफ ऑपरेंड इज इनकाउंटर देन पुश इट ऑन टू योर स्टैक। इफ ऑपरेटर इज इनकाउंटर, अगर ऑपरेंड आते हैं तो पुश करेंगे और ऑपरेटर आते हैं तो आपको पुश नहीं करेंगे बल्कि पॉप करेंगे 2 एलिमेंट्स, और जो टॉप मोस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट टू टॉप मोस्ट एलिमेंट के बीच में ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से पुश कर देंगे। ओके, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। लूप कब तक चलेगा, जब तक आपको
राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर नहीं होता। ओके, सो तो evaluation of postfix expression, suppose capital P is an arithmetic expression written in postfix notation. So the following algorithm which uses a stack to hold the operands will evaluate postfix expression. So step number 1 जो भी आपने बताया था, add a right parenthesis at the end of postfix expression and create an empty stack. Okay, तो हमने बोला ही था ये। Step number 2, स्कैन करेंगे हम अपने एक्सप्रेशन को, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, स्कैन कैपिटल P फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट नेक्स्ट स्टेप 3 and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पोस्टफिक्स्ड एलिमेंट। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के जो एलिमेंट है उनके लिए हम स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 को रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे? until the right parenthesis is encountered. So step number 3, if an operand is encountered then push it onto the stack. Simple, अगर operand मिलेगा तो आप stack के अंदर push करेंगे। If an operator is encountered then do the following things. Number 1, remove the top 2 elements from stack where capital A is the top element and capital B is the next top element. Okay, आपने यही किया था। And Number 2, evaluate B and then encountered operator. आप देख रहे होंगे मैंने ऑपरेटर को एक स्पेशल सिंबल की फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया है। इट मे बी प्लस, इट मे बी डिवीजन, इट मे बी माइनस, इट मे बी मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो आपने किस तरीके से इवेल्यूएट किया है? द टॉप मोस्ट एलिमेंट को आपने ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में रखा है और नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट को ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, और जो भी आपका आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन में उसको आप दोबारा से पुश करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3, प्लेस, इट मींस पुश द रिजल्ट बैक ऑन स्टैक। जो भी बी पार्ट में जो आपका रिजल्ट आया है स्टेप नंबर बी में, उसको आप दोबारा से स्टैक में पुश करेंगे। तो ये आपको स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहना है जब तक कि आपको राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर नहीं होता स्कैनिंग में। सो इफ राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर देन सेट द वैल्यू इक्वल टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ योर स्टैक। ओके, तो जो भी आपका स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वही आपका आंसर होगा। सो देयर आर 5 स्टेप्स फॉर एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। काफी सिंपल है। अब हम देखते हैं कि हम इस अभी तो हमने एनिमेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया था, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप किस तरीके से कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन 532 एक्सपोनेंट ऑपरेटर, this is exponent operator, and then plus operator 84 division, 3 multiplication minus 6 and then plus. So the given expression is this. एल्गोरिथम का जो पहला स्टेप है आप उसमें क्या करने वाले हैं? राइट पैरेंथेसिस को आपने एक्सप्रेशन में ऐड किया। कहां पर ऐड किया? राइट हैंड साइड में। ओके, एंड देन ड्रॉ द टेबल। आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें 3 कॉलम्स होंगे। द फर्स्ट कॉलम इज ए स्कैनिंग सिंबल, जो सिंबल स्कैन करेंगे उसको आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट द स्नैपशॉट ऑफ योर स्टैक, के स्टैक में उस वक्त क्या एलिमेंट्स हैं, क्या पुश हुआ, क्या पॉप हुआ, लाइक दैट। तो जो भी एग्जैक्ट पोजीशन होगी, अगर पॉप होने के बाद में आपका स्टैक का पोजीशन क्या है, या पुश होने के बाद में जो नया स्टैक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज द बेसिकली स्नैपशॉट। एंड द ऑपरेशंस, थर्ड कॉलम ऑपरेशन, कि आप पुश कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं, वो आपको राइट हैंड साइड में जो एक कॉलम है ऑपरेशन, उसमें आपको इंडिकेट करना है। सो एल्गोरिथम का पहला स्टेप था कि आपने एक राइट पैरेंथेसिस को राइट हैंड साइड में ऐड किया अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, एंड क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। ओके, एक एम्प्टी स्टैक को आपने क्रिएट किया। ऑपरेशन क्या किया? क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी कोई सिंबल स्कैन नहीं हुआ, देयर इज नथिंग। ओके, so now scan from all symbols postfix expression के from left to right। सबसे पहले कौन मिलता है? that is 5। so 5 आपका यहाँ पे encounter होता है, that is this, and 5 is a operand। तो ऑपरेशन में क्या लिखेंगे? push, this is the empty stack right now। आप पुश करेंगे 5 को,
और 5 जो है वो आपका स्टैक के अंदर यहाँ पे शो होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज 3। आप 3 को यहाँ पे सिंबल जो स्कैनिंग सिंबल है वो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे आपने कौन सा सिंबल स्कैन करना है राइट नाउ। एंड 3 इज ऑल्सो ऑपरेंड, तो पुश ऑपरेशन यहाँ पे लिखेंगे। अभी तो 5 ही है, आपने पुश किया, सो 3 आपका यहाँ पर आ गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्कैनिंग सिंबल इज 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। ओके, दिस इज 2। 2 इज ऑल्सो ऑपरेंड, तो पुश ऑपरेशन करेंगे। अभी तो 5 and 3 है, पुश 2 करने के बाद में यहाँ पे क्या आने वाला है, दैट इज 2। ओके, सो 5 3 2। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर। आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर, दिस वन। नाउ इफ ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन डोंट पुश, आपको क्या करना है, पॉप करना है, वो भी 2 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम पॉप किया तो आपका कौन पॉप्ड हो जाएगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, दैट इज 2, ये यहां से पॉप्ड हो जाएगा लाइक दिस। ओके, वंस अगेन पॉप ऑपरेशन, दैट इज इन बी। ओके, आपने दोबारा पॉप किया, अब यहां से कौन पॉप्ड हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज 3। एंड देन अप्लाई दिस ऑपरेटर बिटवीन दीज 2 ऑपरेंड। तो कैसे लगाएंगे, ए की पावर बी या बी की पावर ए, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को राइट हैंड साइड में रखना है, ओके, दैट इज कैपिटल ए, और नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, और ऑपरेटर को आप बीच में लगाएंगे लाइक दिस। सो डेफिनेटली दैट इज ए बी इज 3 एंड कैपिटल ए इज 2, तो 3 रेज टू की पावर 2, दैट इज 9, और 9 को आप पुश कर देंगे कहां पर, अपने स्टैक में। सो राइट नाउ स्टैक का पोजीशन है 5 और उसके बाद में 9 आपका यहाँ पर पुश हो गया। ओके, तो नेक्स्ट सिंबल स्कैनिंग आप कंटिन्यू रखें, प्लस। एंड प्लस इज ऑल्सो ऑपरेटर, सो आपको दोबारा से पॉप ऑपरेशन करना है। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। सो आपने फर्स्ट टाइम पॉप किया तो 9 आपका पॉप्ड होगा, सेकेंड टाइम पॉप किया तो आपका 5 पॉप्ड होगा, और इनके बीच में आप प्लस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को राइट हैंड साइड में और नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज ए 5 + 9 इट इज इक्वल टू 14, और 14 को आप दोबारा से स्टैक के अंदर पुश करेंगे लाइक दिस। ओके, नाउ कंटिन्यूएशन में आप चलेंगे तो अब आपको कौन मिलेगा, प्लस ऑपरेटर की बात तो आप कर चुके, अब मिलता है दैट इज 8, तो आप यहां पर लिखने वाले हैं 8, दिस वन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 4, तो पहले 8 को पुश कर देंगे, ऑपरेशन में क्या दिखाएंगे, पुश 8, यहाँ पे पुश 8 ऑन टू योर स्टैक, तो 8 आपका यहाँ पर आएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेंड 4, सो 4 अगर ऑपरेंड है तो डेफिनेटली ये भी पुश होगा, कहाँ पे पुश होगा, स्टैक के अंदर। सो पुश 4 ऑन टू योर स्टैक, सो स्टैक का जो स्नैपशॉट होगा वो होगा आपका 14 8 एंड देन 4। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन ऑपरेटर, तो आप अब यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, दैट इज ए डिवीजन ऑपरेटर। सो ऑपरेटर इज इनकाउंटर देन वंस अगेन अ पॉप ऑपरेशन, आप पॉप करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपका 4 यहाँ से पॉप्ड हो जाएगा, सेकेंड टाइम पॉप ऑपरेशन तो 8 यहाँ से पॉप्ड हो जाएगा। अप्लाई ऑपरेटर दैट इज ए डिवीजन ऑपरेटर बिटवीन दीज 2 ऑपरेंड। सो टॉप मोस्ट एलिमेंट को आप राइट हैंड साइड में, नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, इट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 4 एंड आंसर इज 2, और 2 को आप पुश करेंगे स्टैक के अंदर, तो ऑलरेडी आप पॉप कर चुके हैं, तो 14 के ऊपर क्या आने वाला है, दैट इज 2 लाइक दिस। ओके, सो आंसर आप देख रहे हैं 14 2। नाउ कंटिन्यू, डिवीजन ऑपरेटर पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट इज 3, सो 3 इज ऑपरेंड, सो ऑपरेंड है तो पुश होगा, और स्टैक में वैल्यू 3 पुश हो गई, दैट इज ए 14 2 एंड 3। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन इज ऑपरेटर इज इनकाउंटर देन पॉप, सो सबसे पहले 3 को पॉप करेंगे लाइक दिस, एंड देन 2 को पॉप करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे दोनों के बीच में, तो आंसर आपका होगा दैट इज 6, और 6 को पुश करेंगे आप स्टैक के अंदर लाइक दिस। ओके, सो आपने मल्टीप्लिकेशन तक पहुंचा। नाउ कम टू द माइनस ऑपरेटर, सो इफ माइनस ऑपरेटर इज इनकाउंटर देन वंस अगेन पॉप ऑपरेशन। हाउ मेनी टाइम्स पॉप ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, 2 टाइम्स, सो पॉप किया 6 को
एंड फिर से पॉप किया आपने 14 को और इनके बीच में माइनस ऑपरेटर अप्लाई किया। सो माइनस के राइट हैंड साइड में तो टॉप मोस्ट एलिमेंट 6 जाएगा और माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट 14 जाएगा, दैट इज 14 माइनस 6 एंड 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 और आंसर को आप पुश करेंगे स्टैक के अंदर। तो 8 को पुश किया आपने स्टैक के अंदर। सो माइनस इज ओवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ए 6। सो 6 इज ए ऑपरेंड। यहाँ पे क्या आने वाला है, सॉरी इस जगह पे क्या आने वाला है, दैट इज 6। सो 6 को डेफिनेटली आप यहाँ पे पुश करेंगे और स्टैक की पोजीशन होगी 8 एंड देन 6। एट लास्ट कौन सा ऑपरेटर मिलता है, दैट इज ए प्लस ऑपरेटर। सो इफ ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन पॉप ऑपरेशन। सो आपने सबसे पहले पॉप किया 6 एंड देन सेकेंड टॉप मोस्ट एलिमेंट इज 8 और प्लस ऑपरेटर को बीच में आपने अप्लाई किया। So topmost element right hand side में, so it will be and next topmost element left hand side में, तो 8 plus 6 it is equal to 14 और 14 को आपने स्टैक के अंदर पुश किया। So at last आपको कौन मिलता है, that is a स्कैनिंग सिंबल कौन सा मिलता है, that is a right parenthesis। If right parenthesis is encountered then do nothing। अब आपका जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो आपका आंसर होगा। So this is your answer. So today is enough। हमें सिर्फ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्यूशन को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरीके से इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के ऊपर